जंक्शन में आपने सभी सौदे नोट कर लिए होंगे। लेटेंट व्यू की आज लिस्टिंग हुई है और 197 वाला इशू आज 500 के ऊपर लिस्ट हुआ। इस पे बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएफओ राजन हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमको समय दिया, आपसे बातचीत करके अच्छा लग रहा है। सर मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि बाज़ार में अभी आपकी लिस्टिंग हुई है तो आगे आपकी फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है? आप कैसे और इस रकम का इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे कंपनी ग्रोथ करेगी, जरा इसके बारे में बताइए प्लीज़। Absolutely. I mean, there is a huge amount of opportunity for growth as far as data and analytics is concerned. I have been mentioning even to our investor community that we are truly at an inflection point with more and more companies accelerating their digital journeys and figuring out ways by which they can use all of the data that they are now collecting, now that they are interacting with their consumers, with their employees, through online and digital channels. So I believe that the opportunity is plentiful. We do want to do justice to that opportunity. So in some sense, the IPO that we have done and the funds that we are getting as part of the IPO proceeds, they are really to help us in accelerating our own growth within the context of the industry. A good chunk of the proceeds we are setting apart for going after inorganic growth opportunities as well. In the sense that we believe there are a lot of small, young, nimble companies that are doing work which are very aligned to the wheelhouse in which we operate, whether it is a geographic focus or whether it is a type of work that we do or the industries that we are focused on. The intention is to try and make use of the funds from the IPO to accelerate growth through inorganic mechanisms as well. In addition to that, we've also been investing into the front end, in terms of sales and business development and marketing bandwidth. We believe that all of this will start yielding results in the coming quarters because the entire market is evolving fairly rapidly, and we believe that it's a great time to be able to have this kind of focus and the funding backing as well, that supports the growth. सर किसी बिजनेस में ना तीन चीज़ें, खासकर पर्टिकुलरली जिस सेगमेंट में कंपनी है उसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं वही तीनों चीज़ें पूछता हूँ। पहला ऑर्डर बुक, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा मार्जिन्स। इन तीनों पर आपका व्यू पॉइंट सर। देखिए, ऑर्डर बुक का जो सवाल है, हम आज की डेट पे ऑर्डर बुक डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन हम एट एनी पॉइंट इन टाइम आप देखेंगे आपने हमारे Q1 के नंबर्स देखे होंगे, काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। हम ऑलमोस्ट 20% प्लस टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। हम जो Q2 और Q3 में भी हम जो आज की डेट पे जितना मोमेंटम देख रहे हैं, जो हमारी क्लाइंट से कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं या फिर फॉर एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल एज न्यू अपॉर्चुनिटी, जिस हिसाब से हम ऑर्डर फ्लो देख रहे हैं, हमको ये लगता है कि आने वाला साल तो काफ़ी हमारे लिए स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। हमारा जो आप अगर इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ेंगे DRHP में, तकरीबन 18 से 20% तक का ग्रोथ बताता है डेटा एनालिटिक्स स्पेस में। हमको ये लगता है कि हम इस 18 to 20% से थोड़ा सा बेटर ग्रोथ नंबर्स डिलीवर कर सकते हैं। जो आज की डेट पे हम जो ऑर्डर बुक देख रहे हैं एज वेल एज जो कॉन्वर्जेशन देख रहे हैं, उसके हिसाब से we are fairly confident that we should be able to deliver growth which is in excess of 18 to 20%. दूसरा सवाल था आपका मार्जिन्स पे। मार्जिन्स देखेंगे आप, हिस्टोरिकली हमारा 25 से 28% के बीच रहा है। हम हमेशा प्रॉफिटेबल रहे हैं right from the beginning. It's not just the last few years. We've always been a very profitable business. We've always efficiently managed capital. तो ये जो मार्जिन रेंज है, ये हमको लगता है कि हम आगे जाके भी ये सस्टेन कर पाएंगे। FY21 थोड़ा सा in terms of margins, we had some one-time benefits of lower travel and marketing spends. Of course, there was also a strategic shift in the way we delivered our work. हमने काफ़ी, आप देखेंगे हमारा ऑन-साइट ऑफशोर जो मिक्स देखेंगे, हम सिग्निफिकेंटली मूव कर पाए थे अपना काम ऑन-साइट लोकेशन से ऑफशोर लोकेशन पे, तो इसका भी हमको बेनिफिट हुआ मार्जिन्स पे। ये चीज़ जो हमको लगता है ये आगे जाके भी थोड़ा सा सस्टेन होगा, बट क्योंकि अभी पैंडेमिक स्लोली घट रहा है, ट्रैवल भी खुल रहा है वापस, सो आगे जाके देखना पड़ेगा कि क्लाइंट के क्या एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। वुड दे आस्क अस टू कम बैक टू ऑन साइट लोकेशंस एंड डिलीवर वर्क फ्रॉम देयर, ये चीज़ हमको आगे जाके देखना पड़ेगा। बट जो 25 से 28% का जो मार्जिन प्रोफाइल हमने हिस्टोरिकली मेंटेन किया है, दोस आर फेयरली कंफर्टेबल मार्जिन लेवल्स फॉर अस। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि लेटेंट व्यू की आगे की योजना क्या है, मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैर आगे बढ़ रहे हैं।